And today we have Devan Sharma, the manager, and of course Pranav Ratwal, who will be joining us in 2 minutes from Decentra classes. They will walk us through the core blockchain concept and real world applications and provide practical tips to help you to get started in blockchain development. Let's dive in and explore the future of technology together. Please welcome Devansh. Devansh, you can take the lead. Hello guys, am I audible? Please react with thumbs up if I am. Cool. Actually, like ऑनलाइन सेशन है तो मतलब समझ सकते हो ऑफलाइन होता तो एकदम फुल इंटरेक्टिव होता पर हम इसमें भी पूरा करके रखेंगे ठीक है। स्लाइड्स में जो कुछ भी लिखा है उसमें मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही पढ़ के ऐसा कुछ करना है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है बस। स्लाइड्स तो इंग्लिश में बस लिखा वाला सीन है। सो जो मैं बोलूँगा उसमें अच्छे से मतलब ध्यान देके सुनना है सिंपली। And yeah, you will be gaining lots of knowledge from today's session. Apart from knowledge, you will also gain some how to network with other folks, and yeah, how to get some job opportunities in this space. So yeah, let's start. Wait a second. Guys, if my screen is visible or not? Cool. Wait a second. Cool. So yeah, जिसको भी like प्रॉब्लम होगी चैट्स में we can discuss ठीक है। So like अच्छा इंटरेक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ब्लॉकचेन के बारे में तो पढ़ना ही है ठीक है आज। सो एक वेट सेकंड। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me give you my small intro. So I'm Devansh and currently I'm a third year undergrad, and also I'm working with Decentra classes, which is a decentralized edtech platform as a community manager. And let's give a let me give you a brief intro about Decentra classes. So Decentra class is a decentralized edtech platform, like where you learn concepts of the blockchain. We have designed some courses which are absolutely free, and you can also gaining some knowledge from these courses, and also it's free, and also you can earn by watching these courses. So yeah, this is a brief intro about where I'm from. These are the classes, and starting before starting, you can connect with me. This is my LinkedIn profile QR. If you want to, yeah, you can. I will start after like 10 seconds. If you wish, you can scan this QR. We can connect on LinkedIn. चलो आगे बढ़ते हैं. So yeah, what's the agenda? We'll be covering about what is blockchain, difference between Web 1, Web 2, Web 3, what is Ethereum blockchain development, what are smart contracts, what are NFTs, and yeah, of course, the future of blockchain. सिर्फ यही नहीं है मतलब इसके अलावा भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइक आई हैव बीन इन दिस वेब स्पेस सिंस माय फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज. सो या मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंसेस लिए हैं कम्युनिटी मीटर्स में जाके लेके. सो या उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे. हाँ ऑल्सो लाइक इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ. सो गाइस ये एक ट्विटर का लिंक है. आप जिसको स्कैन करोगे ना तो आपके पास पूरा कंटेंट आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली लिखा हुआ. And you will just have to click a picture at yeah I am attending this session and yeah I have gained some this knowledge.
वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है इसमें, एंड यू कैन ट्वीट। इसका बेनिफिट्स ये सब है, लाइक व्हेन यू व्हेन यू हेलो, इसका माइक ओपन है, yes, yeah. So when you share your learnings on these socials like LinkedIn and Twitter, like yeah, I'm doing this and I have this made project and या फिर मैंने ऐसा कुछ सीखा है, so उससे क्या होता है, like first of all connections, like Web3 is all about connections and networking। जितना आप नेटवर्क करोगे, सामने से मिलोगे, उसको अपने आइडियाज बताओगे, वो आपको अपने आइडियाज बताएगा, तो ऐसे ही ग्रो होते हैं इस स्पेस में। सो when ये बताना चाहूँगा, use Twitter and post about this session, about uh, about this session on Twitter, and yeah, we will repost it. So yeah, hope so scan कर लिया होगा सबने, बीच में like you can attach one picture of the session. Next, history of blockchain। ब्लॉकचेन क्या होती है मैं बताता हूँ सिंपल। ब्लॉकचेन आता क्या है दिमाग सुन के, लिस्ट ऑफ मतलब बहुत सारी चेन है, ब्लॉक है, उसकी चेन बनी हुई है, ठीक है। इसमें जो थ्योरी लिखी है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है बस। थ्योरी तो बस पढ़ने के लिए होती है। सो यू ऑल नो सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने लाइक ब्लॉकचेन का मतलब संस्थापक वही है। सो फर्स्ट हमारे पास आया बिटकॉइन। अब बिटकॉइन तो था, ठीक है भाई, बिटकॉइन आ गया। अब बिटकॉइन से क्या हुआ कि अब लाइक उसमें आप वो तो कर सकते हो, लाइक एक्सचेंज ऑफ मनी यूजिंग बिटकॉइन, बट आप उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लिख सकते। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये भी एक हम आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे। सो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिनको हम डैप्स बोलते हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या है, अब जैसे आप समझो, आपकी नॉर्मल गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम इज एप्लीकेशन, वेब टू एप्लीकेशन, एंड मैं यहाँ पे ब्रेव यूज कर रहा हूँ, और भी बहुत लोग ब्रेव यूज करते हैं, तो ब्रेव इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डैप। सो या टेक अवे, आगे बताता हूँ इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसीज, अब लाइक ब्लॉकचेन में है और क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। वी हैव इथीरियम, वी हैव बिटकॉइन, वी हैव रिपल एंड शिबानु। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, यही चार नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टोस करेंसी है। स्टेलर की अपनी खुद की है, ऐसे ऐसे करके, लाइक बिटकॉइन का BTC, ईथर से ईथ। अब जैसे हम कोड करते हैं, अब बिटकॉइन में क्या था भाई, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन हो कर पा रहे हो, बट उसमें तुम वो नहीं कर सकते, लाइक कोड नहीं कर सकते, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं कर सकते। तो तब हमारे पास आया इथीरियम। अब इथीरियम के लिए क्या आया, हाँ भाई ईथर में हम भेज रहे हैं, मैं किसी को भेज सकता हूँ इथीरियम, वो भी मुझे भेज सकता है। अब इसके अलावा क्या था, हम इसमें कोड भी कर सकते थे, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड सॉलिडिटी। लाइक जिसको भी वेब3 सीखना है भाई, डायरेक्ट जंप इनटू द सॉलिडिटी। प्लीज एग्जीक्यूट्स कुछ भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट आती है तो ठीक है, सॉलिडिटी में कूद जाओ एकदम, एंड या मतलब लाइक द फर्स्ट स्टेप टू लर्न ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। सो व्हाट आर NFTs। अब कुछ कुछ टर्म्स आ रही हैं, जैसे NFT आ गई, आपने ब्लॉकचेन सुन लिया, डिसेंट्रलाइजेशन एक वर्ड है, चलो वो बताता हूँ मैं इससे पहले। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर आप इंस्टा आप देख रहे होगे अपना, जो मोस्टली सब यूज करते हैं, इंस्टा एक आपका सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। लाइक उनके पास एक डाटा है, मतलब पूरा दे हैव ऑल आर डाटा, ओके, योर आर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ऑल, ठीक है। उनके पास एक डाटा एडमिन है जिसके पास पूरा एक्सेस है हमारे डाटा का। सो या इट्स अ सेंट्रलाइज, कोई सेंटर में बंदा बैठा है जिसके पास पूरे सबका डाटा है। एंड इन द डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डैप्स, सो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जो भी डाटा है उसका ओनर वही है जिसका वो डाटा है। लाइक बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ब्रेव हो गया एंड अदर अदर, हम आगे बात करेंगे। तो दीज आर ऑल आर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसमें कोई भी बीच का बंदा नहीं है, मीडिएटर नहीं है, जिसके पास आपका पूरा डाटा है। अगर मेरी वो चीज़ है तो मतलब उसका डाटा का ओनर सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं हो सकता। और यही आता है हमारा NFTs। NFT स्टैंड फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये भी एक डिजिटल एसेट है जो सबका यूनिक हो सकता है, ठीक है, और मतलब ये सिर्फ मेरा ही है, लिखा है ना इंडिविजुअल, ये सिर्फ मेरा है, मैं इसको एक साथ डिवाइड नहीं कर सकता। अब मान के चलो, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नंबर है ना, वो भी एक अलग यूनिक है ना, मतलब वो किसी का सेम नहीं हो सकता। सो या ये मैंने एग्जांपल लिया ताकि तुमको समझ में अच्छे से।
सो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स लिखे हैं फॉर क्रिएटिंग एनएफटीज। मैं एनएफटीज के आगे एग्जांपल भी बताऊंगा, लाइक कुछ कुछ अब बहुत सारी एनएफटी जैसे मोनालिसा की, अ, अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी, वो सब आगे दिखाएंगे। बिफोर उससे पहले सॉलिडिटी क्या होती है। अब मैंने बताया था लाइक जिसको भी वेब थ्री डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सबसे पहला काम भाई सॉलिडिटी सीख लो। अगर आप तुमको बिल्कुल कोड वाली लैंग्वेज सीखनी है वेब थ्री की। अब वेब थ्री इज नॉट अबाउट कोडिंग। वेब थ्री में बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, और कम्युनिटी कम्युनिटी प्लेज वेरी मच रोल इन वेब थ्री। लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ब्लॉकचेन को, वेब थ्री को एम्पावर कर रही हैं इन इंडिया। एंड so if you want to go in the tech side of the blockchain, so you have to learn solidity। सिर्फ solidity नहीं, solidity के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, सोलाना के लिए रस्ट। अब कभी solidity वो थी लाइक टाइम में, मतलब लाइक इसका भी डिमांड थी, अभी भी है, बट लाइक रस्ट ने कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लिया solidity को अभी, क्योंकि एज पर द डिमांड एंड सिक्योरिटी पर्पस टू। सो या इंट्रोडक्शन टू सॉलिडिटी। सॉलिडिटी सब बेसिक लैंग्वेज है यार, मतलब जिससे तुम्हें स्टार्ट करनी है वेब थ्री जर्नी अपनी। इसका सिंटैक्स प्रॉपर जावास्क्रिप्ट जैसा ही है, कोई फैशन वाली चीज़ नहीं है। एंड या इससे तुम इथीरियम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, एंड तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हो इथीरियम ब्लॉकचेन पे। अब बिटकॉइन ने तो अलाउ नहीं किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना, तो इथीरियम ने अलाउ किया। इसके लिए हम फाइल एक्सटेंशन जैसे पाइथन के लिए डॉट पी वाई, सी प्लस प्लस के लिए डॉट सी पी पी, इसके लिए डॉट सोल यूज़ करते हैं। सो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल ऑफ सॉलिडिटी। लाइक मैंने अपना रीमिक्स आईडी खोल के रख रखा है। तो जैसे तुम वी एस कोड भी यूज़ करते हो, यहाँ पे रीमिक्स पे चलता है सारा काम। वैसे वी एस कोड में भी चल सकता है, पर मोस्टली वी विल यूज़ रीमिक्स आईडी। वी एस कोड कम ही यूज़ करते हैं इसमें। लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है? तब शायद आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूंगा। अभी शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो हमने सॉलिडिटी के बारे में, हाँ, ये जो बंदा है प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना इंडिविजिबल, सेल एक बहुत बहुत सॉरी हाई प्राइस पे सेल होती है। सो दीज आर एनएफटीज। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द मेन, लाइक जिसे बोलते हैं ना, मतलब ब्लॉकचेन टेक का यही है जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम वेब थ्री में ऐसा टेक साइड जा रहे हो, नॉन टेक भी बड़े मार्केटिंग रोल्स तो होते ही हैं, बट इफ यू वांट टू गो इन द टेक साइड, सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो लिखना ही पड़ेगा भाई सबको। सो क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझ रहे हो तुम? कॉन्ट्रैक्ट से समझते हो ना, लाइक मैंने चीज लिख के दे दी है सॉरी, यही कॉन्ट्रैक्ट है, अब जो भी बात चलेगी वो इस पे ही चलेगी। सेम वैसा ही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसमें ऐसी इफ एल्स वाला सीन चलता है इसमें, ये नहीं तो हो, मतलब ये ऐसा नहीं तो वैसा होगा, वैसा नहीं तो ऐसा होगा। सो इसका क्रिएशन, डिप्लॉयमेंट, एग्जीक्यूशन, मतलब नॉर्मल जैसे मैंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, हम इसको चेंज पे डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के साथ साथ हम इसमें ऐसा गैस फीस भी यूज होती है। अब जो रीमिक्स आईडी है वो तो आपको लाइक पर एड्रेस आपको 100 ईथर्स देती है। फिर उसके बाद लाइक अगर मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, तो फिर उसमें कुछ हमारे ईथर्स जाते हैं फॉर द डिप्लॉयमेंट। ठीक है, वेट अ सेकेंड। गाइस गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, ओके?
Guys, till then, you have any sort of queries you can ask in the chat box. The speakers will be answering them. हाँ गाइस, थोड़ा कोल्ड सा हो रहा है यार, तो इसलिए। हाँ, तो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, लाइक कैसे वर्क करता है। क्रिएशन आपका नॉर्मल, जैसे आप जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वैसा चलता है। एंड डिप्लॉयमेंट के लिए भी आपको कुछ ईथर्स चाहिए होते हैं, जो मैंने बताया, जो ऑटोमेटिकली आपको रिमिक्स में गिवन होते हैं पर एड्रेस। जैसे उसमें बहुत सारे एड्रेस दे रखे होते हैं, हर में 100 ईथर्स होते हैं। अब जो भी मैं कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूँगा ना, तो उसमें लिखा आ जाएगा 999.997 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हमारे कुछ ईथर्स जो है वो हमारे डिप्लॉयमेंट के टाइम चले गए। डिप्लॉय होता है, उसके बाद यार उसमें तुम देख सकते हो, लाइक जो आउटपुट आउटपुट नहीं आता, उसमें तुम्हारे फंक्शंस बने होते हैं, फंक्शंस कॉल कर सकते हो तुम। नेक्स्ट। हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड थर्ड पार्टी भी आ रही है बीच में इन द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी क्या, जिसके पास तुम्हारा सबका एक्सेस है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है पार्टीज और एग्जीक्यूशन के बीच में। तो इसमें तुम देख लो, लाइक कोई भी मीडिएटर नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ में ब्लॉकचेन एज ले जाती है एज कम्पेयर टू वेब टू। अब यार इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लाइक कोई भी तुम्हारा डाटा टैम्पर नहीं कर सकता। अब मैंने बताया था ना ब्लॉकचेन क्या होती है, एक लाइक ब्लॉक्स की लिस्ट होती है, लाइक चेन होती है ब्लॉक्स की। सो हर एक चेन का ना खुद का एक एड्रेस होता है, और वो ना प्रीवियस ब्लॉक का भी एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने उसमें, ब्लॉक में। अब जैसे जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है जेनेसिस ब्लॉक, ठीक है। अब जेनेसिस ब्लॉक के पास कुछ इन्फो है अपनी, उसका एड्रेस है। सेकंड ब्लॉक आ गया, सेकंड ब्लॉक पे खुद का एड्रेस तो है ही, पर वो जेनेसिस ब्लॉक का भी ना एड्रेस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। और यही चेन ना आगे चली जा रही है, चली जा रही है। सो मान के चलो कोई बंदा टैम्पर करने भी आता ना चेन पे, सो वो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ना कोई भी उसने बीच का छेड़ा, क्योंकि उसका एड्रेस तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे ऑलरेडी स्टोर हो रखा है, सो पूरी चेन वो एक साथ टेम्पर कर ही नहीं पाएगा। इसमें कुछ टाइम लिमिट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अब एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा करोड़ में इतना टाइम लगता है अगर तुम्हें ब्लॉकचेन को टैम्पर करना है। एट द एंड एवरीथिंग इज नॉट फुली डिसेंट्रलाइज्ड। ब्लॉकचेन में भी हैकिंग हो सकती है, बट इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा सीन रहता है। तो नेक्स्ट, इथीरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। मैंने बोला था यार स्लाइड्स का वैसे ही सीन रहता है, लाइक इसमें लिखा हुआ है देखो, ईथर एंड ट्रांजैक्शन फीस। तो ये सब मैंने पहले कवर किया था, फिर से कर लेता हूँ। लाइक इथीरियम क्या है, एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, जिसपे तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख के अपने डैप्स बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। अब इथीरियम ब्लॉकचेन ना ईथर यूज करती है, मैंने बताया तुमको, बिटकॉइन बीटीसी। ऑफ कोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो बनते नहीं वहाँ पे, तो इसमें ईथर का मामला चलता है सारा। अब तुम्हारी ट्रांजैक्शन फीस इसमें लिखा हुआ है लगती है। अब जैसे मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा तो मेरी फीस लग गई, ले भाई। तो फिर उसमें ईथर तुम्हारा प्रॉपर सेल मतलब यूज होता है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम होता है। इसमें लिखा हुआ है देयरफॉर all the applications which run on Ethereum blockchain development are not controlled by any central authority.
तो मैंने बताया ना, कोई बीच का बंदा नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग ब्लॉकचेन वेब3 स्पेस में अगर आप हो, तो आप ही ओनर हो अपने डाटा के। मैं ही ओनर हूँ मेरा जो डाटा है उसका। कोई सेंट्रलाइज बंदा नहीं है जिसके पास मेरे एक्सेस है मेरे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों का। सो दैट्स वाई ब्लॉकचेन एज ले जाता है इन वेब टू से। एंड इसके बारे में बात करते हैं। uh, अब तुम मतलब मेजर जो आजकल की क्राउड है, दे आर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट। ये टॉपिक नॉर्मल है, मतलब लाइक ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम मतलब देख रहे हो लाइक कितनी जनता रैट रेस में फंस रही है आजकल। कोई भी बंदे से अगर मैं फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट है मेरी कॉलेज का, मैं जाके पूछूंगा भाई क्या करेगा, तो बोलता है भाई डीएसए करूंगा, फैंग में जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, रिज्यूमे बनाऊंगा, शॉर्ट लिस्टेड। कहीं ना कहीं मैंने भी फर्स्ट ईयर में आके यही सोचा था कि भाई मैं डीएसए करूंगा। तब माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का प्रोग्राम निकला था, मैंने उसके बारे में सुना था, जिससे तुम माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न ले सकते हो। पर वो चीज़ ना, फिर जब मैं आगे आगे मैंने वेब3 मीटअप्स अटेंड करना स्टार्ट कर, तो मेरे को भी आइडिया नहीं चलता ये ब्लॉकचेन है किस नाम की भला। 3-4 मीटअप्स तो ऐसे चले गए भाई, भाई फ्री का खाना मिल रहा है और स्वैग्स मिल रहा है। भाई स्वैग्स ने तो मतलब ऑक्यूपाई कर लिया पूरे वेब3 मीटअप्स को। सो बट इट्स नॉट अबाउट ओनली द फ्री फूड एंड स्वैग्स। ठीक है, फ्री फूड मिलता है, बट कुछ नेटवर्किंग भी होती है, कुछ कनेक्शंस भी होते हैं। लाइक इफ यू आर अटेंडिंग अ वेब3 मीटअप, तुमको नेटवर्क करना चाहिए। आई नो शाय लगता है, बहुत ज़्यादा शर्माते हो, उस वक्त मैं भी शर्माता था। बट तुम उनको बताओ तुम क्या कर रहे हो, एंड उनसे तुम नेटवर्क करो ऑन लिंक्डइन और ट्विटर, वेयर एवर यू कैन। उससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। पहली बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, तुम भाई आगे ऐसे भी कर सकते हो, मतलब नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हर मीटअप में। सेकेंड थिंग, तुम उसका लिंक्डइन लोगे, तुम देखोगे वो करता क्या है। अगर वो अच्छा जॉब वाला हुआ, यू हैव सम एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस है, तो यार तुम उसको डायरेक्टली कोल्ड ईमेल सेंड कर सकते हो, या कोल्ड टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, लाइक आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड यू कैन रेफर मी, ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। एक्टिव होना पड़ता है ऑन द सोशल्स। लर्न इन पब्लिक वाला सीन है भाई प्रॉपर। लाइक कुछ भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया, ट्विटर पे डाल दो, लिंक्डइन पे डाल दो। कंसिस्टेंसी मेन है, लोग देखते हैं, लोगों का आता है, ऑफर्स आता है सामने से। मेरे को भी आते हैं एक लाइक जो भी मेरा रोल है या जो भी मैं करता आ रहा हूँ फर्स्ट ईयर से, वो सब मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन ट्विटर पर। तो उससे ही ऑफर्स निकलते हैं। बस वही है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी कुछ अचीव कर सकते हो। पैसा बहुत है ब्लॉकचेन स्पेस में, अभी बोल रहा हूँ। अगर एग्जांपल से मान के करूँ, वेब टू, पता है ना वेब टू क्या होता है, वही वेब डेवलपमेंट वाला। अब वेब टू की अगर सैलरी 1x है ना, तो तुम ब्लॉकचेन डेवलपर्स की सैलरी मान के चल सकते हो 5x, अप टू 5 to 6x वेब डेवलपमेंट वाले बंदे से। सो या डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर बंदे कम है इस फील्ड के। तो या मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू लाइक वांट, क्योंकि एट द एंड यार सबको मनी अर्न करनी है। सो इफ यू वांट टू लाइक अर्न लॉट्स ऑफ मनी, या तुम्हारा इंटरेस्ट भी जैसा है, तो डीप डाइव इनटू लाइक ब्लॉकचेन स्पेस। आगे आगे सब यही आने वाला है। सो या ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं बताता रहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो डिफरेंस बिटवीन वेब वन, वेब टू एंड वेब थ्री। अब वेब वन क्या होता था भाई, सिंपल स्टैटिक पेजेस, मतलब उसमें नो इंटरेक्शन एट ऑल। मतलब जैसे विकीपीडिया सबने यूज किया होगा, तो विकीपीडिया में क्या था, बस तुम रीड कर सकते हो उस अपने टेक्स्ट को जो भाई तुम्हारे सामने आ रहा है लिखा हुआ, दैट्स ऑल ओनली। उसके बाद आ गया तुम्हारा वेब टू। अब वेब टू क्या है भाई, वेब टू जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ड्राइव। तो इसमें टू वे इंटरेक्शन है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं सामने से भी हमें कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है यूज करके। सो वेब टू ऐसा नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है 2000 से 20, मतलब 2020 तक अभी भी चल रहा है वेब टू, ये वो करके। उसके बाद आ गया वेब थ्री। अब वेब थ्री क्या आ गया भाई, जो सेंट्रलाइज चीज थी ना वेब टू में, जिसके पास पूरा एक्सेस है पूरा हमारे डाटा का, वेब थ्री ने सब खत्म कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर।
पर वो ये कि नॉट 100% डिसेंट्रलाइजेशन क्या रखा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कोई बंदा अगर लाइक कोई भी जो हैक कर पाएगा वेब3 स्पेस में। इन द वेब 2 लाइक इजी है हैक करना, हैकर्स कैन, बट इन वेब 3 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वेब 2 में डिसेंट्रलाइज मतलब वेब 2 में सेंट्रलाइज वर्जन था सारा, वेब 3 में डिसेंट्रलाइज्ड है प्रॉपर। नेक्स्ट, सो या इसमें क्या है, बिकम बिल्डर इन वेब 3, बेस्ट प्रोग्रामिंग टू स्टार्ट विद 2। अब इसमें कुछ लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, फर्स्ट पेज देख लो, तुम्हें लिखा है सॉलिडिटी। बहुत इजी लैंग्वेज है, कुछ भी मतलब वो नहीं है लाइक बहुत टफ लैंग्वेज ऐसे बोल रहा हूँ मैं, से रस्ट की तरह बोल रहा हूँ, रस्ट टफ है अभी बोल रहा हूँ। सोलाना पे अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो तुम्हें रस्ट आनी चाहिए, बट तुम्हें इथीरियम वर्चुअल चेन्स में मतलब इथीरियम पे करना है तो सॉलिडिटी से चल जाएगा काम, इजी है। लाइक यू कैन चेक आवर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रा क्लासेस, उस पर भी तुम बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हो वेब 3 के, जहाँ से तुम सीख सकते हो चीज़ें। एंड या सॉलिडिटी से स्टार्ट करना होता है इफ़ यू वांट टू लाइक स्टार्ट विद योर जर्नी इन वेब 3। हॉबी लैंग्वेजेस हैं C++, रस्ट, गोलैंग, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से सिमिलर सिंटैक्स है बिल्कुल सॉलिडिटी का। इफ अ पर्सन नो जावास्क्रिप्ट मतलब लाइक 60-70% भी आती है तो बहुत ही ईजी है सॉलिडिटी सीखना, और अगर नहीं भी आती है ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो बहुत मुश्किल है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने भी लाइक मुझे जावास्क्रिप्ट पहले नहीं आती थी बिल्कुल भी, मैंने सीधा सॉलिडिटी से स्टार्ट किया था। सो बिल्कुल भी ऐसा टफेस्ट वाला सीन नहीं है, प्रॉपर इजी। नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ट्रांजिशन फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3। अब क्रोम से ब्रेव, स्पॉटिफाई से ऑडिस, ऑडियस अभी शायद आया नहीं है इंडिया में, यूट्यूब से ऑडिसी, फेसबुक से स्टिमेट, गूगल से प्रीसर्च, पेपाल से मेटामास्क। सो तुम देख सकते हो कैसे चीज़ें वेब 2 से वेब 3 में आ रही हैं, और प्लस व्हाट्सएप से स्टेटस। सो ऐसी चीज़ होती है कि मतलब अब जैसे ब्लॉक से मैं ब्लॉकचेन की बात लेके चलूँ, स्टार्टिंग में सॉलिडिटी सॉलिडिटी कर रहे थे सब, अभी भी स्टार्ट सॉलिडिटी से ही होती है। और जब रस्ट आई, रस्ट ने जब मार्केट ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करा तो सबने अपना लाइक पूरा प्रॉपर जो है अपना चेन वो रस्ट पे स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा ही होता है, चीज़ें लाइक आती रहती हैं, एंड तुम्हें खुद को चीज़ों के हिसाब से सेटल आउट करना पड़ता है अगर तुम इस स्पेस में हो तो, टेक वाली साइड में। अगर वेब 2 में भी तुम देख सकते हो, कभी रिएक्ट आ जाता है, कभी रिएक्ट अच्छे चल रहा है, कभी एंगुलर आ रहा है, रिएक्ट एंगुलर भी नहीं है तो नेक्स्ट जेएस जैसे मार्केट में भी चल रहा है। तो चीज़ें आती हैं, पर उसके अलावा भी साथ साथ चीज़ें कुछ अपग्रेडेशन होती रहती हैं। जैसे रिएक्ट जैसे नेक्स्ट जेएस पे आ गए, सॉलिडिटी से रस्ट में आ गए। सो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि कैसे वेब 2 एप्स वेब 3 में कन्वर्ट लाइक उसके वो आए हैं, क्रोम से ब्रेव ये सब। एंड quick summary of Web 2, Web 1, Web 2 and Web 3। Web 1 like just like read only, Wikipedia वाला proper scene। Web 2 में like interaction हो रही है टू वे। Web 3 में पूरा डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का अब तो मतलब समझ ही आ गया होगा कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास हमारा एक्सेस है, हम ही है जो है। ये एक मीम है, तुम देख सकते हो लाइक बिफोर Web 3 कैसा चल रहा है, और जब तुम्हें Web 3 की नॉलेज स्टार्ट होना गेन होना स्टार्ट होती है तब जैसा तुम्हारा फेस बन रहा है। काइंड ऑफ अ सिमिलर फेस मेरा भी बना था जब मेरे को Web 3 एक्चुअल समझ आया था। 5-6 मीटअप सिर्फ फ्री का खाना खाने जाने के लिए, उसका मैंने भी चीज़ें सीखी एंड तब मेरे को Web 3 बारे में पता चला। सो या यू कैन अगर और भी मेरे से ज़्यादा और भी कुछ ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं आजकल की इस फील्ड में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो या कनेक्ट विद देम। कैसे कनेक्ट करोगे, वही इवेंट्स में जाके नेटवर्किंग करके। फ्री का खाना ठीक है, पर नेटवर्किंग करोगे तो खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फिर तो। सिंस Web 3 इवेंट्स ऑल अबाउट फ्री फूड, पिज्जा, कोक, बस यही चलता है इसमें। नेक्स्ट, ये एक और मीम है, करियर इन ब्लॉकचेन कैसे शांत करा रहा है। अब भाई ब्लॉकचेन में करियर तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी जॉब्स होती है। लाइक आपने सुना होगा डेवरल, डेवरल डेवलपर रिलेशंस इंजीनियर, डेवरल आप लग सकते हो। कम्युनिटी मैनेजर यू कैन, blockchain developer you can, full stack blockchain developer,
तो ऐसे ऐसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करियर अपॉर्चुनिटीज वेब3 में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एट द एंड वही नेटवर्किंग, कनेक्शंस, सारा। वेब3 इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। अगर आप वेब3 में हो तो कम्युनिटी में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने स्किल्स शोकेस करने पड़ेंगे मार्केट में। हाँ भाई मेरे को इतना आता है, यू कैन गिव मी इंटर्न, यू कैन हैव, ऐसे करके। फ्यूचर स्कोप ऑफ ब्लॉकचेन, कहाँ का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, वोटिंग सिस्टम। अब जैसे लोग हैकाथॉन्स में वोटिंग, डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम बनाते हैं, मैंने खुद बना रखा है एक। एंड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एजुकेशन में बहुत यूज हो रहा है। सिक्योरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, कि हाँ भाई एट द एंड जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल्स हैं, उनको हम सिक्योर कर सकें यूजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, जो सिर्फ ब्लॉकचेन में है। एंड एक और चीज़ है ब्लॉकचेन के थ्रू, जैसे लैंड रजिस्ट्री आपकी होती है। सो आप लैंड रजिस्ट्री में जितने फ्रॉड्स होते हैं वो सब आप खत्म कर सकते हो बाय द पावर ऑफ ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? अब जैसे पहले आपका कॉस्ट बड़ा लगता है, पेपर वर्क है ना लैंड रजिस्ट्री में, बीच में तहसीलदार एडवोकेट इतना पैसा खाने के लिए। इससे आपका काम सारा ऑनलाइन हुआ। सेकंड थिंग, अब जैसे कोई भी पेमेंट हुई, पेमेंट हम ब्लॉकचेन वेब3 सर्विस में कैसे करते हैं? यूजिंग मेटामास्क वॉलेट, ऐसे ऐसे वॉलेट करके, मेटामास्क फैंटम, ये सब वॉलेट्स है। अब जैसे मैंने कोई भी मेटामास्क वॉलेट पे करा, उसकी ना एक हैश की जनरेट होती है 64 बिट की, जस्ट लाइक आधार कार्ड नंबर, सबका यूनिक, हैश की भी यूनिक, हर ट्रांजैक्शन की यूनिक। तो कोई भी ऐसे फ्रॉड नहीं कर सकता मेरे साथ क्योंकि हाँ भाई मेरी एक हैश की जनरेट हुई है। अब जैसे कोई भी है यार, मेरा जुड़वा है कोई, लेट्स सपोज, एंड वो मेरे को क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई लाइक सेम फेस है, एड्रेस देख लो, मतलब प्रॉपर्टी मेरी हड़पने के लिए। पर जो हमारा पेमेंट होगा, जो हमारी हैश की होगी, वो दोनों की सेम अलग अलग होगी। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि यार फ्रॉड है ये सब करके। सो देख रहे हो कितनी चीज़ें आसान बन रही है इन चीज़ों को यूज़ करके। सो यार ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। Yeah, we hire two Decentra classes. So you can scan this QR and या DM कर सकते हो हमारे फाउंडर को, आर्यन घोष, if want to, if you are looking for any intern. So yeah. So at the end, अच्छा अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, ठीक है? अभी ये तो चीज़ें खत्म हुई जो मेन अब हमारा एक्सपीरियंस। By the time you can post about this session on LinkedIn and sorry on Twitter, जो मैंने आपको लिंक दिखाया था स्टार्टिंग में, यहाँ भी वो लिंक लगा हुआ है। तो होप्स आपने सेशन के टाइम पिक्स क्लिक करी होंगी एंड यू कैन पोस्ट इट ऑन ट्विटर, लाइक मैंने ये सीखा है, ऑटोमेटिक जनरेटेड है। एंड थ्रेड्स भी लिख सकते हो अगर लॉन्ग टेक्स्ट यूज करना है तो। एंड यू कैन जॉइन अ कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी। We have around 1,000+ folks from the different colleges all over from India, uh, who are doing amazing in this blockchain space. So yeah, if you want to like grab some Web3 opportunities, blockchain dev opportunities, career opportunities in this blockchain space, so you have to like publicly रहना पड़ेगा भाई, मतलब शोकेस करनी पड़ेंगी अपनी स्किल्स। कुछ भी बना रहे हो पोस्ट करो, कुछ भी सीख रहे हो पोस्ट करो, लाइक जस्ट लाइक आपने अभी सेशन लिया, ट्विटर पे पोस्ट करो, अटेंड किया, मैंने ये सेशन होस्ट किया या पूरा सेशन ही लिया मैंने, मैं उसको ट्विटर पे पोस्ट करूँगा। सिंपल एग्जांपल, लाइक इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस स्पेस, यू हैव पोस्ट करो सारी चीज़ें, कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्क करो, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड या बाय द टाइम यू कैन जॉइन द कम्युनिटी। एंड एट द लास्ट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं कि लाइक हाउ द रीमिक्स आईडी वर्क्स, जो मैंने स्टार्टिंग में नेट का इन्फो नेट के चक्कर में नहीं दिखा पाया था मैं। So you can scan this QR and let me know if you have any doubts. तो आप चैट पे लिख सकते हो। What is the demand for the blockchain developer?
डिमांड या लाइक डिमांड है, if you know the tech, if you have the skill, then डिमांड है. लाइक अगर किसी को ब्लॉकचेन नहीं आती, सो वो ऐसे इंटरव्यूज में बैठ जाओ तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा. सो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का पहला ये फायदा है कि इंटरव्यूज में 99% इंटरव्यूज में डीएसए नहीं पूछते. दे आस्क ओनली फॉर द लाइक योर कोडिंग स्किल्स ऑन ब्लॉकचेन, सॉलिडिटी, रस्ट, ये सब. डीएसए नहीं पूछा जाता इसमें. सीपीवीपी वाला सीन नहीं है कि आप भी अपना कोड शेफ की प्रोफाइल दिखाओ, ये सब करके. एंड किसको भी डाउट्स हैं, सो यू कैन. मैं देख रहा हूँ चैट्स पहले की. कैन यू यूज, आज मैं पढ़ नहीं पाया था. कैन यू यूज मोर सिंपलर एंड इजियर टर्म्स फॉर ट्रेनिंग. अच्छा, रिया, सो आपको समझ क्या नहीं आया, एक बार मेरे को प्लीज बता दो चैट में, मैं उसको बहुत ईजी में बता दूंगा. Do I want to be an AI developer, so what should I do? Do you think there's any crossover of data science with Web3? देखो, डाटा है तो Web3 में भी चाहिए होता है. सो या ऐसा नहीं है, Web3 एंड AI को भी हम कंबाइन कर सकते हैं. लाइक बहुत सारी चीज़ें. अब जैसे नॉर्मल आपका Web2 कोई प्रोजेक्ट है, उसे बंदे ने AI ला दिया, कोई बॉट, AI बॉट अटैच कर दिया, तो वो एक AI का प्रोजेक्ट बन गया. डैप लुक, यस. सो या मैं आपको एक बार अपनी इसको स्लाइड्स को बंद कर देता हूँ. मैं एक बार आपको रीमिक्स आईडी की शो कर देता हूँ. मैं लाइक कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दिखते हैं, डिप्लॉय होते हैं. अब देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे गया. यार देखो कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रखे हैं, देख रहे हो तुम, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रखे हैं. अब जैसे मैं वोटिंग डॉट सोल पे चला गया. डॉट सोल हमारा लाइक होता है ना एक्सटेंशन, जैसे डॉट पी वाई हो गया. अब देखो, प्रैग्मा सॉलिडिटी क्या है, ये हमारा वर्जन है सॉलिडिटी का 0.8. अब इसमें मैं कोई भी चीज़ तुम्हें समझाऊं, जैसे स्ट्रक्ट. अब जैसे चीज़ों को आसान बनाने के लिए, जैसे एक वोटर है, मैंने एक वोटिंग का, ये डिसेंट्रलाइज वोटिंग प्लेटफॉर्म है, उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये. अब जैसे वोटर है, वोटर का नेम है, उसकी एज का फॉर्मेट है, वोटर आईडी है, वोटर आईडी का कैंडिडेट का नाम है, एड्रेस, वोट एड्रेस, जेंडर, तो हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड के अंदर स्टोर कर रखा है. एंड लाइक ये तुम्हें चीज़ें फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आने वाली जितना ऐसे मैं समझा पा रहा हूँ. तो वही है, स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, तभी चीज़ें लाइक माइंड में आएंगी एंड यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स इन दिस स्पेस. प्रोजेक्ट्स बनाओगे, शोकेस करोगे, you will definitely get rewarded, definitely, by any opportunity or by any grants. Again, Web3 में grants बहुत अच्छे मिलते हैं. Like one of my friend also won approx $1,200 in a blockchain based hackathon. So yeah, $1,200 बहुत हो गए, है ना. So प्राइस पूल भी बहुत अच्छा मिलता है. Web2 हैकेथॉन्स की तरह नहीं भाई, 35,000 40,000 फर्स्ट प्राइस, सीधा लैक्स में ही होते हैं यहाँ पे. सो या स्टार्ट करो एंड डेफिनेटली बहुत सही रिवॉर्ड मिलेगा. रोड मैप फॉर Web3. रोड मैप फॉर Web3, बिफोर स्टार्टिंग वेब टेक साइड ना, आई विल प्रेफर कि learn the core concepts of the blockchain first, like what is cryptocurrency, what blockchain actually is. जैसे मैंने भी अभी बताना चाहा, of course इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी चीज़ें नहीं पता चल सकती, आपको डेज देने पड़ते हैं, आवर्स देने पड़ेंगे टू लर्न. हाँ, तो फिर तब आपको चीज़ें समझ आएंगी ब्लॉकचेन कोर कॉन्सेप्ट्स की. And once you get the blockchain core concepts, and then you can start with the tech journey by starting the solidity. That solidity पे start करो, कोड करो, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ,
एंड उसके बाद हाउ टू लिंक, जैसे ये बैकएंड ही है एक तरीके का, जैसे नोड.जेएस हो गया ना, ये एक तरीके का बैकएंड ही है वेब3 में। अब इसको कैसे लिंक करोगे तुम अपने फ्रंट एंड से, उसके लिए भी एक अलग लाइब्रेरी होती है ether.js, web3.js। सो उसको यूज करके तुम इस चीज को अपने फ्रंट एंड से लिंक करते हो, तभी तुम्हारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनके तैयार होती है। एंड यू कैन शोकेस दिस इन योर प्रोजेक्ट। लाइक मैंने भी अपने सेकंड ईयर में एक लैंड रजिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाया था। सो वो भी प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, तो मैं उसमें जीता भी था अपने कॉलेज के लाइक मिनी प्रोजेक्ट के हैकाथॉन में, जो भी हुआ था। सो या ऐसे करके चीजें तुम, बस वही है कि जो वो वाला हैकाथॉन था उसमें सारे प्राइस पूल बड़ा कम था, तो इसलिए लैक्स में था उसमें बस। अ, आजकल तो लगभग हैक्स में वेब स्पॉन्सर भी थे या एग्जैक्टली। उनके लाइक तुम उनका टेक यूज करो, तुम उनके एसडीकेस यूज करो अपने कोड में, एंड यू कैन इजीली विन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, $1,000 आराम से। बस उनका एक सेपरेट कोड ही होता है यार, वो अपने कॉपी पेस्ट करना होता है अपने कोड बेस में, जस्ट सिंपली। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न लाइक Rohan, if you want to learn like the core concepts of the blockchain ना, then you can use our platform Decentral Classes। इसमें बहुत सारे tutorials हैं absolutely for free, and future में you can also earn upcoming in US। या साहित्य रॉय, I personally know him। so उस नियो एक्स में भी ना जो हैकेथॉन होने वाला है उसमें भी सॉलिडिटी में कोड है, पूरा 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 सॉलिडिटी में कोड है, तो रस्ट भी यूज नहीं करनी, सिर्फ सॉलिडिटी का कोड करो एंड या ऐसे करके। सो या यू कैन रोहन, यू कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म while to learn the core concepts of the blockchain and solidity से start हो जाओ फिर। yes yes exactly। सो आई थिंक चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार मेरे को थम्स अप से रिएक्ट करके बता दो अगर थोड़ा भी, क्योंकि इतने कम ऑफ टाइम में तो यार इतनी चीज़ें ही हो पाती हैं। इफ़ यू थोड़ा समझ आया कि होता क्या है भाई स्पेस मतलब वेब3 के बारे में, तो या अरे बहुत सारे आगे भाई। ठीक है सर, समझ आया, ठीक है कूल। वही है कि मतलब कोई नई चीज़ सीखनी है। एंड किसने रेस किया? हाँ, ब्लॉकचेन सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं यार। सी प्लस प्लस यार, आप सॉलिडिटी सॉलिडिटी से स्टार्ट करो, सीधा ट्यूटोरियल्स देखो, स्टार्ट करो। सी प्लस प्लस यार डिमांड नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ मैं यार। हाँ, सी प्लस प्लस इन ब्लॉकचेन यार, देखो इन द ब्लॉकचेन सॉलिडिटी एंड रस्ट इज द ओनली थिंग। सी प्लस प्लस को तो शायद पीपीटी में ऐसे एडिटेड वर्जन मुझे देखना पड़ेगा एक बार। सो हाँ, इन द ब्लॉकचेन, मैंने पहले बोला था पीपीटी पे ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूँ वो इन द ब्लॉकचेन। अगर तुम्हें आना है तो स्टार्ट विद सॉलिडिटी, डायरेक्ट स्टार्ट विद सॉलिडिटी। जस्ट लर्न सम कोर कॉन्सेप्ट्स इन द ब्लॉकचेन लाइक व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, जो मैंने बताया अभी, वही उसको अच्छे से सीखो। कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, माइनर्स, वैलिडेटर्स क्या होते हैं, ये सब इनको पढ़ो। एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी बाय स्टार्टिंग सॉलिडिटी। सॉलिडिटी जो बेस लेयर है ना ब्लॉकचेन की, वही सॉलिडिटी है। सॉलिडिटी से स्टार्ट करो, उसके बाद लाइब्रेरीज सीखो, ether.js, web3.js, hard@, हाउ टू कनेक्ट योर बैक एंड, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है विद द फ्रंट एंड, एंड यस यू कैन स्टार्ट बिल्ड समथिंग क्रेजी इन ब्लॉकचेन बहुत आराम से। अब एंड द मेन थिंग, टेक के अलावा शोकेस करो, नेटवर्किंग करो मीटअप्स में जाके। उनको बताओ लाइक मैं ये सब बिल्ड कर रहा हूँ अभी, एंड उनसे गाइडेंस लो। I haven't done work in JS etc. like in the Web2. Can I still directly jump to it? Yeah, of course. Web2 आना, but like Web2, if you know Web2, if you know some concepts in Web2, so ठीक है, cherry on the top वाला scene है proper. But like if you नहीं भी आता तो you can, directly you can. Some of our college friends have started learning blockchain in the third year of college. तो हाँ, दे डोंट नो अबाउट वेब2, उनको कुछ नहीं आता, वो बस एकेडमिक्स वाले बंदे हैं, बट उन्होंने भी ब्लॉकचेन स्टार्ट कर दिया है। एक ने तो प्रोजेक्ट भी बना लिया अपना पहला सॉलिडिटी को यूज करके। तो यार डायरेक्ट सॉलिडिटी से स्टार्ट करो,
सेकंड ईयर, कूल 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 यार, अब तो यार सेकंड ईयर में तो सही है, नाइस। वेट अ सेकंड, सो एक बार मैं आपको वो ट्वीट वाला दिखा देता हूँ, सो यू कैन ट्वीट इजीली एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। यस, हियर इज अ ट्विटर लिंक। सेशन में आपने फोटोज क्लिक करी होंगी, होप सो। एंड ऐसी सेशन मतलब ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ो, सीखो, रिसर्च करो। आपके इथीरियम सोलाना पे बहुत सारे आपके ऐसी डैप्स आपके बने हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कुछ, तो उनके बारे में पढ़ो, जैसे यूनिस्वैप हो गया, पोलका डॉट हो गया, ये क्या क्या चीज़ें क्या हैं, ये इनके बारे में इनके वाइट पेपर्स पढ़ो। तो यार इफ़ यू आर इन द ब्लॉकचेन, मैं समराइज करूँ ना, इफ़ यू आर इन द ब्लॉकचेन, तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए: टेक, नेटवर्किंग एंड शोकेसिंग योर स्किल्स। तीन चीज़ें: टेक, नेटवर्किंग, कनेक्शंस एंड शोकेसिंग। अगर आपने इन तीन चीज़ों को मास्टर कर ली, देन यू कैन अर्न ग्रेट इन दिस वेब3 स्पेस। सो या, आई होप सो आपने कर लिया होगा एंड या। Any other doubts? You can ask. Then we will wrap up the session. I think doubts नहीं है. Okay, cool. हाँ guys. So I hope so समझ आया होगा and yeah, thanks for joining. Wait a second. Where is Anas? So, guys, a big round of applause for Devansh, who share his expertise and blockchain fundamentals and how this revolutionary technology is shaping the future. We hope you are leaving with valuable insights and a clear path to getting started in blockchain development. If you have any further questions or want to explore more, feel free to contact with him on LinkedIn, which he has shared the QR for that. And also, you can reach out to us through Decentral Classes community, as well as you can ask us to get. We will get you joined into that community as well. So I have shared the WhatsApp group for the Decentra classes. I'm sharing the again. You all can join here and ask your doubts over there as well. Yeah, अगर किसी को like doubts हैं like blockchain क्या और कुछ भी जानना चाह रहे हो तो feel free to DM me in my LinkedIn. Sure. So let's wrap it up. And yeah, thanks a lot, Devansh. Thanks a lot, Decentra classes, and thank you all for attending this event. Thank you so much, guys. Let's wrap up this event. Hope you learned a lot. And yeah, ब्लॉकचेन में आना है तो भाई तीन चीजें: नेटवर्किंग, टेक एंड शोकेसिंग। बस, यू विल गेन अ लॉट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।